करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखिएगा वो कहता है कि इन द टेक्सचर और रोमांटिक पोइट्री देयर रन्स अ नोटिसेबल स्ट्रैंड ऑफ लव फॉर नेचर। Among the romantics, Wordsworth plays as the greatest harbinger of nature cannot be argued. The appreciation of nature is the crowning point of his poetry. That one is fascinated by the beauties of nature was not a novel idea, because even before Wordsworth there had been poets who composed lyrics on the scenic beauty, but Wordsworth's response to the benevolent mentor is still unmatched. He convinced of nature as a moral guide, mother and nurse. Starting with the physical appearance, Wordsworth's love for nature culminated in pantheism. Pantheism कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला की कोई भी बनाई हुई चीज को देखता है तो उसको अल्लाह याद आ जाता है। बेटा ये इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये जो है ये आपका आज का लिटरेरी टर्म है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, पास्ट पेपर में भी आया है, व्हाट इज पैंथेइज्म। तो पैंथेइज्म की बेटा इधर डेफिनेशन याद से ऐड कर लीजिएगा। When he found the spirit of God permeating all objects of nature। ठीक है, पैंथेइज्म कहते ही ऐसे हैं, इसी को कहते हैं कि जब एक इंसान को स्पिरिट ऑफ गॉड नजर आए परमिएटिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि जब भी वो नेचर की कोई चीज देखता है, कुदरत कामला देखता है, कोई अल्लाह की बनी हुई क्रिएशन देखता है या वो नेचर को देखता है तो उसको अल्लाह याद आ जाता है, गॉड याद आ जाता है। Wordsworth's attitude to nature is clearly distinguishable from that of other great natural poets. Unlike Coleridge, who was interested in supernatural aspects of universe, Wordsworth spiritualizes nature। जहाँ पे कॉलरिज जो है उसका मेन इंटरेस्ट क्या था कि वो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स को देखता था, तो वर्ड्सवर्थ जो है स्पिरिचुअलाइज करता था नेचर को। Unlike Shelley, he does not discuss the shifting behavior of nature. He is different from Keats in that Keats is merely interested in the sensuous delights which nature offers. और जो कीट्स था वो हमेशा क्या करता था, वो मेनली इंटरेस्ट किसमें था कीट्स का, सेंशुअस डिलाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ रहा है, वर्ड्सवर्थ को उसने कंपेयर किया है कॉलरिज के साथ और फिर उसने शैली के साथ। ये इस तरह के पैराग्राफ्स जो होते हैं ये मार्क्स गेनिंग होते हैं। जब भी कोई ट्रेट आता है ना किसी भी पोइट का तो या राइटर का, तो हमेशा उसको कंपेयर किया जाता है उसके कॉन्टेम्पोरेरी पोइट्स या कॉन्टेम्पोरेरी राइटर्स या क्रिटिक्स के साथ। तो ये कॉलरिज, शैली, कीट्स ये सब क्या थे, और ये बायरन जो है ये क्या थे, ये जो है रोमांटिक पोइट्स थे और इसके ही इरा के थे। द फायरी ट्रीटमेंट ऑफ नेचर विच वी कम अक्रॉस इन बायरन पोइट्री इज नॉट बी फाउंड इन वर्ड्सवर्थ। For Wordsworth, nature was the universal spirit ready for guiding everyone. Most of the rural characters which he paints are shown as simple, pure, and corrupted, mainly because of their close communion with the object of nature. To Wordsworth, nature has a formative influence on human personality. He believed that, in spite of all the material progress, we are unhappy because the world is too much with us. The objects of nature do not touch our heart. Nature, he thought, should be accepted as a guide and teacher, because one impulse from the vernal wood may teach you more of man, of moral evil and good. नेचर जो है उसके ख्याल में वो कहता था कि वो एक गाइड है, एक टीचर है, क्योंकि एक इम्पल्स जो है वर्नल वुड की वो जो है इंसान को टीच करती है, टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इवल एंड गुड। वो आपको मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल टीच करती है, इवल और गुड जो है वो टीच करती है। फिर वो कहता है But nature formulates man's personality only when he approaches her with a heart. Nature के लिए यहाँ पे हर यूज हो रहा है, ठीक है। तो नेचर हो जाए, अर्थ हो जाए, कोई कंट्री हो जाए, उसके लिए हर यूज होता है। तो but nature formulates man's personality only when he approaches her with a heart which watches and receives. This is why Coleridge in Detection and Odd cannot extract pleasure from nature, because he can only see and not feel the objects of nature. His heart is not responsive to nature, whereas we are told about Michael that when other had it not, he heard the south make subterraneous music। वो कहता है कि जब
when others he did not, जब दूसरों को सुनाई नहीं देता था या दूसरे कोई तवज्जो नहीं देते थे, तो वो जो है he heard the south make strenuous music, तो उसको ऐसे सुनाई देता जैसे साउथ जो है वहाँ से एक सबटेरियनियस म्यूजिक जो है वो सुनाई दे रहा है. There is traceable order in his attitude toward nature. To begin with his love for nature was confined to mere physical pleasure. He adored nature for the sake of sensuous delight. वो हमेशा नेचर को एक सेंसुअस डिलाइट के लिए अडोर करता था, उसकी तारीफ करता था. बट नेचर वाज मोल्डिंग एंड फॉर्मुलेटिंग हिज पर्सनालिटी थ्रू एजेंसीज ऑफ ब्यूटी एंड फेयर. सिर्फ वो जो है नेचर को इसलिए अडोर नहीं करता था कि नेचर सिर्फ एक उसकी सेंसुअस या सेंसुअस डिलाइट्स हैं या उसके सेंसुअस अपील है, बल्कि वो इसलिए देखता था नेचर को कि उसकी एक मोल्डिंग और फॉर्मुलेटिंग उसके कुछ ट्रेड्स हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करते हैं थ्रू द एजेंसीज ऑफ ब्यूटी एंड फियर. Fair seed time had my soul, and I grew up, fostered alike by beauty and by fear. Then his heart awakened to the loveliness of nature. Those incidents charm which first attached his heart to the rural objects such as physical pleasure and sensuous joy. और ये जो इंसिडेंटल चार्म थे जो कि पहले अटैच हुए उसके हार्ट, उन्होंने उसके पहले उसके हार्ट को अटैच किया टू द रूरल ऑब्जेक्ट. रूरल यानी कि ये जो विलेज, रूरल एंड अर्बन लाइफ, ठीक है, रूरल यानी कि गांव की लाइफ, such that physical pleasures and sensuous joy grew weaker and he started loving nature for her own sake. तो जैसे जैसे वो रूरल ऑब्जेक्ट से यानी कि कुदरती जो चीज़ें हैं, जंगलात हो गई, नदियाँ हो गई, वादियाँ हो गई, उनसे उसको मोहब्बत होती चली गई, तो वैसे वैसे जो है उसका ये लव फॉर, तो उसने नेचर को लव किया फॉर हर ओन से, ना कि वो उसमें से फिजिकल प्लेजर ढूंढता या सेंसुअस प्लेजर ढूंढता. ही अप्रिशिएट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर. Now the moon appeared to him as much loving as if she knew no other region but that of Wordsworth. और अब जो है मून जो है उसके लिए कैसा नजर आता था, लविंग एज इफ शी न्यू नो अदर रीजन, जैसे उसको कोई और रीजन का पता ही नहीं है, बट दैट ऑफ वर्ड्सवर्थ. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज एप्रिसिएशन नेचर वाज द शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल. अब जो है क्या था नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज एप्रिसिएशन क्या थी ऑफ नेचर, कि वो फिजिकल से स्पिरिचुअल की तरफ शिफ्ट करता. इन द नटिंग ही टेल्स द रीडर हाउ द चेंज अकर. One day, when he was throwing stones aimlessly, he apprehended that he was unnecessarily molesting the peace of nature. जब जो है विलियम ब्लेक जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, तो एक दिन when he was throwing stones aimlessly, तो उसको ऐसे लगा जैसे वो पीस ऑफ नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मॉलेस्ट कर रहा है, अननेसेसरीली वो नेचर को क्या जो काम है उसको वो खत्म कर रहा है. एट दैट टाइम ही फेल टू मेडिटेशन एंड मिस्टीरियसली फेल दैट नेचर हैड अ स्पिरिट ऑफ इट्स ओन. देन आई ड्रिंक द विजनरी पावर ही व्यूज इन प्रेल्यूड. और फिर वो कहता है कि वो then I think the visionary part, वो एक visionary part देखता है, he views in the prelude, वो prelude में देखता है, his sympathies were enlarged and the common range of visible things grew dear to him. The last stage of his love for nature is pantheism. He observed that a single spirit pervaded everywhere in the universe. For in all things now I saw one life and felt that it was joy. और वो कहता है कि for in all things now I saw one life, कि हर चीज में मुझे एक ही जिंदगी नजर आती है, and felt that it was the joy, कि ये joy था. All the things sang one song and it was audible to the ears of his soul and heart. He felt presence of God coloring all objects of nature and investing them with the celestial light. इसको pantheism कहते हैं, कि उसको हर जगह में प्रेजेंस ऑफ गॉड नजर आती थी और उसको लगता था कि ये सारी कलरिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जो कि कलर करता था तमाम ऑब्जेक्ट्स को तमाम ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और फिर उनको इन्वेस्ट करता था विद द सेलेस्टियल लाइट, हेवनली लाइट के साथ, अ लाइट दैट नेवर वाज ऑन सी और लैंड. द eminence of God in nature gave him a
माइस्टिकल विजन, और यही जो एमिनेंस थी गॉड की इन नेचर, वो उसको mystical vision देती थी. And he concluded that nature was a physical expression of the divine being, or an onward shape through which the divinity reflects itself. Whatever he saw appeared like something in himself, a prospect in his mind. It was the quality of Wordsworth poetry which touched which touched A.C. Bradley so much that he said, there have been greater poets than वर्ड्सवर्थ but none more original. वो कहता है वर्ड्सवर्थ से भी greater poets थे लेकिन कोई भी इतना original नहीं था. Wordsworth's great obsession with nature does not mean that his poetry has nothing to offer to man. The very concept of pantheism states that spirit of divinity permeates both man and nature. Furthermore, he held the view that nature has all the powers to harmonize the human personality. A balanced personality is necessary to lead a perfect life. Wordsworth believed that in the presence of nature, the mind of man is framed even like the breath. कि इंसान का माइंड प्रेजेंस ऑफ नेचर में ऐसे फ्रेम होता है जैसे breath होता है, breath and harmony of music. There is a dark invisible workmanship that reconciles this discordant element and make them move in one society. अच्छा जी, यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है द माइंड ऑफ मैन इज फ्रेम्ड इवन लाइक ब्रेथ एंड हार्मनी ऑफ म्यूजिक. देयर इज अ डार्क इनविजिबल वर्कमैनशिप. एक डार्क इनविजिबल वर्कमैनशिप है, एक करामत है दैट रिकॉन्साइल्स डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट, जो कि डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स को रिकॉन्साइल करते हैं एंड मेक देम मूव इन वन सोसाइटी. ऐसे एलिमेंट जो डिस्कॉर्ड हो जाते हैं उनको वो रिकॉन्साइल करती है नेचर जो है, और उसको हार्मोनाइज करती है और मेक देम मूव इन वन सोसाइटी, और फिर उसको एक सोसाइटी के अंदर मूव करती है. एक्चुअली उसको नेचर को देख के एक सॉलेस मिलता था, जैसे वो परवीन शाकिर है ना, वो कहती हैं कि ए खुदा जब भी तेरा आसमां देखती हूँ उसमें बसा एक नया जहां देखती हूँ. तो क्या होता है कि जब इंसान नेचर को देखता है तो उसको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है. लोग क्यों समंदर के किनारे जाते हैं, क्यों रिवर के किनारे जाते हैं? एक्चुअली वो जब बहुत ज़्यादा उनका दिमाग फॉरेस्ट्रेट हो जाता है ना, फॉरेस्ट्रेटेड हो जाते हैं लाइफ, तो जो लोग नेचर के करीब होते हैं वो उतने ज़्यादा हार्मोनाइज्ड पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं. लेकिन ऐसे लोग जो नेचर से दूर होते हैं वो उतना ही ज़्यादा जो है उनकी पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं वो डिस्टर्ब्ड होती हैं. यानी कि चार दीवारी के अंदर रहने वाला जो इंसान और ऐसा इंसान जो कि नेचर के करीब है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है. दोनों की सोच में, उनकी अंदर के इंसान में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. Many critics regard Wordsworth's concept of nature as a mere illusion. In fact, the common class of human beings who could never come across any spiritual experience find it an uphill task for them to comprehend Wordsworth's transcendentalism. That is why Matthew Arnold, Morley, and Rely believe that Wordsworth's philosophy of nature is illusion not reality. वो कहता है कि ये एक illusion थी, कोई reality नहीं थी. मतलब ये उसका बस दिमाग से ही वो पता नहीं जो है एक illusion थी और इससे ज़्यादा कोई नहीं. To sum up, we can say that Wordsworth's conception of nature is unique in the whole range of English poetry. He is without an iota of exaggeration, high priest of nature. वो एक high priest था of nature. And then no English poet has ever grasped those aspects of nature which Wordsworth comprehend without much labor. To Abercrombie, his whole life belonged to nature, and nature to his poetry was what it was to Lucy, both law and impulse. और वो कहता था कि his whole life belonged to nature, कि उसकी तमाम तर जिंदगी जो है वो नेचर से बिलोंग करती थी, and nature to his poetry was what it was to Lucy. और वो जो है नेचर उसके लिए, नेचर टू हिज पोइट्री बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसके लिए इट वॉज टू लूसी, लूसी के लिए थी फॉर बोथ लॉ एंड इम्पल्स, दोनों लॉ और इम्पल्स जो कि उसका हिस्सा थे. ये बेटा इसकी पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं.